So, good morning, everyone. I hope all are well and waiting for beautiful session with Sonal Parihar. Now, let me tell you about little bit about Sonal. Sonal Parihar is an Indian television actress. She is part of the industry for more than 10 years. Along with daily soaps like बड़े अच्छे लगते हैं, ये है मोहब्बतें, Chakravarti, Ashok Samrat, and Sankat Mochan, Mahabali, Hanuman, to name a few. You must have seen her in many episodic shows like Crime Patrol, Savdhan India, Adalat, and CID. She has been part of digital ads and short films. In fact, her web series Tandoor was nominated for IIFA Awards for OTT last year. She believes that staying positive and being happy is a choice. So she is really a charming actor, and we welcome Sonal Parihar on this platform. Welcome, Sonal, and thank you so much, ma'am. The floor is all yours, and she will be talking about behind the scenes. So tempting topic. So she will talk about what happens behind the scene and what all she has done and she has learned from so many experiences that she had on the scene, behind the scenes. Over to Sonal Parihar. Good morning, everyone. So, obviously, when I saw the 10 days ka journey of the celebration of women achievers, I realized that everyone was somewhere introducing their work area as well. And the glamour world, acting, modeling, बहुत लोगों को क्रेज रहता है कि हाँ मतलब एग्जैक्टली क्या होता है. वो जब सेट पर आते हैं तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा है, लाइक मेरी लास्ट सेशन में ये बात हुई कि बहुत बोरिंग भी हो जाता है. So I thought that yes, we will keep the topic of consciously positive very much there because मुझे बहुत अच्छा लगता है to talk about what I feel. But I just thought कि actors life का एक हल्का touch और कैसे हमारी पर्सनल लाइफ की जो लर्निंग्स है वो मुझे मेरी फील्ड में काम आई, या जो मैं कुछ टेक्निक्स हम यूज करते हैं एक्टिंग में वो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ. आई टॉक अबाउट इट. So firstly, to start with, obviously when I was thinking about it कि how to start with it, अब मैं ये बताऊँ हम ये सीन कैसे करते हैं, वो सीन कैसे करते हैं, it is gonna be a long topic. So I just thought that I'll just give a gist of the day or the routine. So to start with, firstly, our day is like a 12-hour shift. It is normally like 7 to 7 or 9 to 9. Or अगर night shoots होती हैं तो it is 2 to 2. And then it goes to mostly 13-14 hours because अगर 9 o'clock की शिफ्ट है तो फॉर मेकअप एंड हेयर हमें आधे घंटे पहले पहुंचना पड़ता है और पैकअप कभी टाइम पर नहीं होता. दे एक्सपेक्ट अस टू स्टे बैक लाइक आधा एक घंटा एडजस्ट कर लो. सो इट इज अ 14-hour शिफ्ट. एंड देन आपका ट्रैवलिंग 1 घंटा इधर 1 घंटा मिलाकर 16 घंटे. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो 8 घंटे तो टोटल हमारे पास बचते हैं. 8 घंटे की नींद एक्टर्स को कभी नहीं मिलती. सो वो जो एक थॉट है दैट वी हैव अ वेरी लैविश लाइफ दिस दैट एंड बहुत कंफर्टेबल होता है कि एक मेकअप करने के लिए बैठे एक है, दैट इज ऑफ कोर्स देयर पार्ट ऑफ द थिंग. बट वी नेवर, एंड स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसको नींद से मोहब्बत है, मुझे तो लगता है जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज है खाना और सोना. मुझे ये लगता था हाउ विल आई मैनेज, बट देन when you do something that is your passion, when you follow your dream, is the catch. मेरे मेकअप मेरे जो बैग दैट आई कैरी शूट पे, देयर इज अ सेशन, हमें एक्टर्स को बोला जाता है व्हाट इज इन योर बैग. अगर कोई मुझसे बोले कि मैं वो सेशन करूं तो मेरे बैग में मेकअप पाउच के अलावा एक बेडशीट और एक ब्लैंकेट होता ही है. whenever I get time, I still remember when I was doing बड़े अच्छे लगते हैं, मी एंड शमोना, हम लोगों के सीन्स ऐसे होते थे जब when we were shooting with a small छोटा इन्फेंट, हम ऐसे यूं टिक कर सो जाते थे और हमारी नींद होती थी. सो हम ना एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो टाइम चुराने के लिए कि आपको कैसे अपनी, बिकॉज इट्स नॉट ओनली you need to have mentally normal and relax अपनी लाइन्स याद करने के लिए, उस सीन के मूड को समझने के लिए. तो मुझे साइड में एक कोना में मिलता है, मैं यूं टिक के सो जाती हूँ. तो मुझे घर में इतना अच्छा बेड मिले, सब मिले, एंड इट्स
So when you follow your passion and your dream is, जब आपकी जो सबसे प्यारी चीज भी होगी आप वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं. So and you know realize ही नहीं होता कि it is like this long shift, because वो होता है ना कि अगर आप बच्चों को खेलने के लिए भेज दो बाहर, अभी सबकी छुट्टियां चल रही हैं, आप अगर उनको वापस नहीं बुलाओगे दे विल नॉट कम बैक होम. और आने के बाद भी कि तुमने नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया, ये वो करो, वो थोड़ी देर बैठेंगे और वो आपका मुंह देखते रहेंगे अब मैं जाऊं. Same is with us. We are not actually working. When we are on set is when I am actually living. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि at times you know we are sitting home for a very long time, एक प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट के बीच में जब गैप होता है, बट अगर मेरे ऑडिशन चलते रहते हैं ना, when I'm facing camera, I feel I'm alive, कि जिंदगी चल रही है. जब ये सब नहीं होता ना तो सब कुछ रुक जाता है. सो वो जो एक मैंने बताया 16 आवर्स का पूरा स्केड्यूल है, how we manage is when we enjoy what we are doing. So starting with the day, so before getting a show हमें auditions देने पड़ते हैं. Is basically the selection process. So मुझे बहुत पहले किसी ने बोला कि when you act, जब आप एक सीन एक्ट करते हो तब आप करो ना रियल लाइफ में. अभी जैसे आपसे बात करते करते मैंने यहाँ देख लिया, मैंने वहां देख लिया, मैंने एसी की तरफ देख लिया, खिड़की की तरफ देख लिया, बट जब आप ऑडिशंस देते हैं आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का टाइम होता है, मैक्सिमम 2. उस टाइम पर आई कांटेक्ट नहीं छोड़ना, अनलेस कि आपको एक बहुत धमाकेदार रिएक्शन देने वाले हो कि नीचे नीचे देखा देगा और ढक, या आप अचानक अगर आपको शर्माना है तो आप नीचे देखेंगे. तो ऐसे मोमेंट जब तक नहीं है, डोंट लूज दैट आई कांटेक्ट. रीजन इज हमारा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है रिजेक्शन से. लोग क्योंकि उनके पास एक कैरेक्टर के लिए 200 300 500 और हजारों कैंडिडेट्स होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स. वो तो पागल हो जाएंगे अगर वो सब टेप्स देखते हैं. हाउ इट स्टार्ट्स इज विद द रिजेक्शन. लुक में नहीं बैठ रहे हैं, लुक में नहीं बैठ रहे हैं, लुक में नहीं बैठ रहे हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, मेंटेन नहीं है, शक्ल नहीं बैठ रही. फिर आती है आवाज नहीं बैठ रही है, डायलॉग डिलीवरी कैसी है, एक्सेंट का प्रॉब्लम आ रहा है क्या. बहुत लोगों को डायलेक्ट का इशू होता है, उनका जो एक रीजनल लैंग्वेज होता है उसका अगर एक्सेंट आ रहा है और आप कुछ और प्ले कर रहे हैं, तो वो सब पहले रिजेक्शंस आते हैं. फिर जो बचे हुए लोग होते हैं उनमें उसमें वो चौथी लाइन में अरे फंबल हो गया हटा दो, या ये हो जाता है कि कहीं कुछ कॉन्फिडेंस का इशू दिख रहा है. देयर दिस आई कांटेक्ट वर्क्स, क्योंकि जब आप कैमरे पे देखकर बात कर रहे होते हैं, जो सामने सिलेक्शन के लिए बंदा या बंदी बैठी होती है वो इंगेज हो जाते हैं. सो these are few tricks जो I was one of the lucky is you know जिनको ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया. अब मुझे ये पता नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं ये काम करता है कि नहीं, बट मैं जब आई थी तब मुझे ये चीज बोली और मुझे वो चीज क्लिक कर गई और मैं आज तक फॉलो करती हूँ. एंड लाइक आई सेड, हम वो अपना कॉन्शियसली पॉजिटिव पार्ट नहीं छोड़ेंगे. हाउ आई यूज दीज थिंग्स इन माई रियल लाइफ इज, आई बिलीव आपकी जो डे टू डे लाइफ चलती है ना, तब आप छोड़ दो आई कांटेक्ट, या जिसे हम कहते हैं एफर्ट. बिकॉज यू नो यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर, देन यू हैव अ प्रोफेशनल लाइफ, तब के अप डाउन चलते हैं कि कभी आपने अटेंशन दिया, कभी आपने केयर किया, कभी हटाओ. जब क्रूशियल मोमेंट आता है, जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ का ऐसा टाइम है, जब आप सिलेक्शन वाले प्रोसेस पे आ रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ का ऐसा टाइम है जब एक बड़ा डिसीजन मेकिंग टाइम आ रहा है, इट इज मेक इट और ब्रेक इट वाला टाइम, तब आई कांटेक्ट नहीं छोड़ना. एज इन तब उस इंसान को, उस रिलेशनशिप को, उस मोमेंट को इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा देना है. वो कुछ पर्टिकुलर टाइम है, वो जो वल्नरेबल क्रूशियल मोमेंट है दैट. सो ये जो चीजें मैं प्रोफेशनली सीखती हूँ, मुझे एक टाइम आता है जब मुझे ऐसा लगता है कि यू नो कितनी सिंपल सी चीज है जो हम रियल लाइफ में भी कर सकते हैं. अब ऑडिशन के बाद हो गया, आपसे बात हो गई कि भाई ये कैंडिडेट्स फाइनल है. अब सिलेक्शन से पहले आप सारी बातें करते हैं. हाउ विल द प्रोजेक्ट बी, शूट कहाँ होगी, आउट ऑफ मुंबई, वर्किंग आवर्स कैसे होंगे, देन बजट. सो ये होता है जब आप फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले का प्रोसेस है. फॉर दिस ऑल्सो द सेम पर्सन टोल्ड मी कि मैं नई आई, मुझे कैसे समझ में आए, अब मुझे उल्लू बना के कोई भी चीज के लिए हाँ बुलवा लेंगे, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी, फिर मैं सर पकड़ के बैठी रहूंगी, हाई कैसे निकलूं, हाई कैसे निकलूं. पहले तो मुझे यही लगता था कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया मतलब आप फंस गए. सो मुझे उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया इज, पहले समझो कि प्रोडक्शन हाउस कितना बड़ा है, तो उनके पास बजट का लेवल क्या होगा. फिर जिस चैनल के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है, क्योंकि चैनल का एक अपना बजट होता है, वो कैसा है.
एंड देन आप ये समझो कि आपका जो कैरेक्टर है उसको वो एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये प्रोडक्शन हाउस इट इज गुड, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, दिस इज अ गुड चैनल, सो दैट मे बी द प्रोडक्शन हाउस इज गुड, पर वो एक छोटे चैनल के लिए प्रोजेक्ट बना रहे होंगे. सो आपको ऐसे एक बजट का अंदाजा लगता है एंड देन you quote a good amount according to those terms and conditions. If they are really keen to take you, they will agree for your terms and conditions and the budget you will quote. Also कि कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है. अगर वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है उनको कोई मतलब नहीं होगा, तुम हो कोई और हो कोई और हो कोई और हो. सो हाउ यू नो दैट द कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट इज these terms and conditions. अब मैंने पर्सनल लाइफ में ये कैसे इम्प्लीमेंट किया इज कि you know there are few people who are very expressive. मुझे बहुत, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में इतना लंबा लिखती हूँ, मुझे कभी कभी लगता है जगह कम पड़ जाती है. देन देयर आर पीपल who are actually by nature less expressive. उन्होंने नहीं बोला इसका मतलब ये नहीं है वो फील नहीं करते. सो आपको ये समझना जरूरी हाउ द पर्सन इज, देन व्हाट द सिनेरियो इज. हो सकता है सामने वाले का जो 2% है वो उसका आपके हिसाब से 2% है, पर वो उस इंसान, ये भी मुझे बोला था, मुझे अमित ने ये चीज बोली थी कि मे बी माई योर 2 इज माई 10 दैट वेज. सो दैट वेज मे बी वो आपको ऐसे लग रहा है इट इज जस्ट 2%, यू नो यू कैन एक्सपैंड योर एक्सप्रेशन, यू कैन टेक मोर एफर्ट, आप थोड़ा और टाइम दे सकते हो, थोड़ा और एफर्ट, थोड़ा और वैल्यू, थोड़ा और रिस्पेक्ट. पर उस इंसान का वो जो 2 है आपके हिसाब से वो उसका 10 है. तो आपको पहले वो समझने आना पड़ेगा हाउ मच एक्सप्रेसिव ही और शी इज, हाउ मच वोकल. मे बी कुछ लोग लिखकर ज्यादा बोल लेते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट ज्यादा बेटर कर लेते हैं, वो वर्बली नहीं बोल पाते हैं. कुछ लोग बोल ज्यादा लेते हैं पर वो मैसेज ऐसे करते हैं कि आपको ऐसा लगता है सत्यानाश कर दिया. तो पहले वो समझना है एंड देन आपका जो अटेंशन, केयर और रिस्पेक्ट का लेवल है वो आप डिसाइड करिए. इफ दैट पर्सन इज गिविंग दैट मच टू यू तो आप समझ लो कि हाँ भाई मुझे दिस इज वेयर आई रियली बिलोंग टू. और नहीं तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो जगह उसकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, और ये कि आप उस जगह पर उस इंसान को चाहिए या नहीं, या हाँ भाई मुझे सिर्फ टाइम काटना है. तुम नहीं बोलोगे तो कोई और बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा तो कोई और बोलेगा. दैट सो समवेयर ये जो चीजें मैं पहले प्रोफेशनली यूज करती थी, मैंने समझा कि मैं पर्सनली कैसे, मैं एज जो भी हो मैं बहुत इमेच्योर थी. मुझे अब समझ में आने लगी हैं चीजें जो सालों पहले की थी. सो अब हम हो गया प्रोजेक्ट फाइनल लेट्स से एंड नाउ वी आर, अब हम सेट की बात आती है कि हम पहुंच गए सेट पे, ये कॉल टाइम लिया मैंने आ गई. दिन की शुरुआत होती है मेकअप से. अब मेकअप के लिए ऐसा बोला जाता है एंड मेरी मेकअप ज़्यादा हेयर दीदी से बहुत बनती है. वो लोग मुझे बहुत ना पर्सनल टिप्स देते हैं, बहुत एक्स्ट्रा केयर टेक करते हैं. सो आई डोंट नो, आई एम रियली लकी दैट वो पूरे टाइम बाकी कोई हो ना हो दे रियली टेक केयर ऑफ मी लाइक व्हाट. सो minimum makeup is always considered to be the best. अब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा थिंग कि हमने आई का क्या किया, लिप्स का क्या किया, वो होता है कैरेक्टर वाइज. अगर आप कोई ऐसे एकदम ढंग ढंग वाले कैरेक्टर्स करेंगे तो ये सब लाउड करना ही पड़ेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस. जैसे अगर अभी आप देखें तो मैंने फेस पे बेस नहीं किया है. व्हाट आई हैव डन इज कि जो ऐसे एरियाज होते हैं जो कवर करना है बस वो कर लिया. तो इट इज कंसिडर्ड कि मिनिमम मेकअप जितना रहेगा मेंटेनेंस इजी रहती है. एक टाइम के बाद ना आपके मेकअप क्रैक होगा तो आपको उसको मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है. फिर बार बार टचअप करवाओ, जब बेस किया ही नहीं तो मेंटेन किसको करोगे. बट ये चीज आपकी सेट पे खत्म नहीं होती है. फिर एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने स्किन का ख्याल रखें. कि अगर आपको सीरियसली ये भी पता है कि घर जाने के बाद मुझे शायद सिर्फ 4 घंटे मिलेंगे सोने के लिए, तो भी उसमें से 15 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो कि आप अपना मेकअप अच्छे से निकालेंगे. जो भी आपका नाइट क्रीम है ये है वो है, या अगर आपकी स्किन ड्राई लग रही है तो यू हैव टू मॉइस्चराइज, अगर आपकी स्किन ऑयली लग रही है तो हाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट कि आपका वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है जो सीबम क्रिएशन है उसके लिए आप क्या अप्लाई कर रहे हैं. अगर आपको है, मुझसे सनस्क्रीन लगाने कोई बोल दे मेरी जान निकलती है, पर जब वो पिगमेंटेशन दिखने लगता है और फिर वो हटाने के लिए महीनों लगते हैं ना तब अक्कल अपने आप आ जाती है. सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द स्किन, ताकि आपको वहां मेकअप कम करना पड़े. आई स्वेयर इट टुक मी सो लॉन्ग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, हाउ सिंपली यू कैन रिलेट दिस टू रिलेशनशिप्स.
कि अगर एक रिलेशनशिप हेल्दी है ना, तो लीपा-पोती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ ब्यूटीफुल इटसेल्फ। आपको सिर्फ उस रिलेशनशिप को ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करने हैं, बर्थडे है, फेस्टिवल्स हैं, ये है, वो है। बट अगर आप उस रिलेशनशिप को जेन्युइनली अच्छा रख रहे हैं, तो ऊपर के एक्स्ट्रा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली व्हेन यू आर फेकिंग ना, जैसे मैंने बोला जब आप एक्स्ट्रा मेकअप डालते हो तो मेंटेनेंस दिन भर की शूट में लगता है कि टच अप करते रहो, करते रहो, यहाँ क्रैक आ गया, वहाँ क्रैक आ गया। सो व्हेन यू पुट ऊपर का जो फेक पार्ट है बहुत ज़्यादा इन अ रिलेशनशिप, तो आपको फिर ना मेंटेनेंस उतनी करनी पड़ती है। यू आर ल्योरिंग समबडी ऐसे शाहरुख खान बन के या गिफ्ट्स देकर। वो अगर आपके रिलेशनशिप का बेस है या आपने कुछ अपने ऐसे एक फेक पिक्चर पोर्ट्रे किया है, कि सोचा कितना बड़ा बर्डन है पूरा टाइम, टिल द टाइम यू पीपल विल बी टुगेदर आपको वो शाहरुख खान बनना पड़ेगा। आप जहाँ इरफान खान बने, सामने वाली ने बोल दे रहा है कि भाई मैंने तो शाहरुख को चूज़ किया था, तुम तो इरफान निकल गए। सिमिलरली आप गिफ्ट दे देकर या प्यारी-प्यारी बातें करके आप परेशान हैं पर फिर भी मैं स्वीट टॉक करूँ। एक दिन तो आएगा यू विल बी, आपको देन यू हैव टू लाइक फॉरगेट योरसेल्फ एंड यू पूरी ज़िंदगी आप सिर्फ स्वीट टॉक करते रहोगे। आप बहुत पेन में हो पर मैं नहीं बोल सकती। क्यों? मैंने रिश्ता ही वैसे बनाया है कि मैं नहीं बोल सकती। बट जैसे मैंने आपको कहा कि चीज़ खत्म सेट पर नहीं हो जाती है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जब घर वापस आते हैं तो हम अपने स्किन का ध्यान रखें। सो व्हेन यू आर विद अ पर्सन, अभी जैसे मेरी फैमिली मेरे से दूर है, तो मैं आज उनसे दूर हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी वहाँ नहीं खत्म हो जाती कि जब मैं वापस आ गई हूँ या वो मेरे पास आए हैं और वो चले गए हैं तो खत्म हो गया, नहीं। व्हेन दैट पर्सन इज़ नॉट नेक्स्ट टू यू, तभी उस रिश्ते को बनाकर चलना, उसका ख़्याल रखना कि जब आप वापस से मिलें तो आपको लीपा-पोती की ज़रूरत नहीं पड़े, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यू नो आई रियली फील, मुझसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं दैट बिना कॉन्टैक्ट में रहे, बिना बात किए, लव इज़ अ फीलिंग। जब आप फेक कर रहे होते हो ना, तब आपको ऐसे कॉन्टैक्ट में पूरे टाइम अप्रूवल की ज़रूरत होती है। बट व्हेन यू आर हैप्पी, कुछ लोग बोलते हैं हाँ, तुमको पड़ी नहीं इसलिए तुम ऐसे नहीं होता यार। आप किसी इंसान के बारे में सोचो, आप खुश रहते हो। आप दुआ दिल से देते हो ना, मुँह से दी हुई दुआ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। सो दिस इज़ हाउ आई, मैं जब इन चीज़ों के बारे में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सोचा तो आई रियलाइज़। अब सिमिलरली देयर आर फ्यू थिंग्स जो मेरे आस-पास के लोगों ने मुझे बोला, जो मैं पर्सनली फ़ॉलो करती थी और फिर मुझे वो चीज़ लेटर एक पीरियड के बाद काम पर आने लगी। लाइक देयर इज़ दिस फ्रेंड ऑफ माइन श्वेता, जिसने मुझे बहुत पहले एक बात बोली थी अबाउट ट्रस्ट, कि जितना चेक करना है, जितने सवाल करने हैं, जितना कन्फ्यूज़न में रहना है, ये पहले रह लो और डिसाइड करो ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। फिर जब आपने ट्रस्ट कर लिया ना, फिर चेक मत करो, बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। ट्रस्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उस ट्रस्ट पे खरा उतरना सामने वाले की है। आज के ज़माने में सब मिलता है, विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है। तो आपने एक इंसान को इतना प्रेशियस गिफ्ट दिया है ट्रस्ट, उसे मेंटेन करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसने वो उस चीज़ पे खरा उतर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतरा तो सामने वाले का लॉस है ना। अभी प्रोफ़ेशनली मैंने बहुत सारे शोज़ एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद छोड़ दिया। ठीक है, मैं एक हमारा फॉर्मल प्रोसेस होता है ऑफ गिविंग नोटिस। आप 1 महीने का नोटिस पीरियड देते हैं, वो कभी 2 बोल देते हैं कि यार 1 महीने और कर लो, हम वो करते हैं। बट देन हाउ आई फॉलो इट प्रोफेशनली इज़ कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी मैम से बात हो रही थी कि मैं चली जाऊँगी, फिर मैं ना नहीं बोल पाऊँगी तो इससे पहले कि मैं कुएँ में कूदूँ ही ना। सो व्हाट आई डू प्रोफेशनली इज़ कि जितनी चीज़ें चेक करनी है, जितना बैठ के सोचना है, आप बोल दो मैं कल रिवर्ट करूँगी। ये सीन्स हैं, मैं इनके लिए नहीं कंफर्टेबल हूँ, ऐसे आउटफिट्स हैं जिनके लिए मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ भाई, आप मुझे कितना भी कन्विंस करने की कोशिश कर लो, यू विल टेक मी ऑन सेट, आई विल कम बैक। मैंने एक्चुअली सेट पे जाकर वॉकआउट किया है। मैंने शो करने के बाद नोटिस पीरियड दिया है कि मुझे जो प्रॉमिस किया गया था। सो बट जब मैंने हाँ बोल दिया, जब मैंने पहले सीन के लिए कैमरा फेस कर लिया, मैंने जितना चेक करना था कर लिया। जितनी चीज़ें जो भी था कि व्हाट विल बी द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या मुझे प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जैसे लोग बोलते हैं एक्टर्स टैंट्रम्स दिखाते हैं। हाँ, दिखाते हैं बहुत सारे, सब नहीं दिखाते हैं। व्हेन वी आस्क फॉर अ इंडिविजुअल मेकअप रूम कि हम मेकअप रूम शेयर नहीं करेंगे, सबका मतलब टैंट्रम नहीं होता है। मुझे पता है कि मैं अगर एक स्टोरी कर रही हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा सीन्स मेरे हैं,
तो whenever like I said I'll get time, I'll prefer कि मैं 2 मिनट ही सही पर आँख बंद करके लेट जाऊँ, ताकि मैं अगले सीन के लिए बिल्कुल जागी। आप मुझे 2 बजे शूट करवा रहे हो, मैं फ्रेश कैसे रहूँगी अगर मुझे बीच में वो टाइम नहीं मिलता? एंड देन मैं अगर मेरा दिमाग शांत नहीं हुआ है, मेरे को लाइन्स याद नहीं रहेंगी, आपका शूट डिले होगा, आपका प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ेगा। देन इफ देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन जिसमें बहुत इमोशंस हैं, मुझे वो मेंटल पीस चाहिए। सो आई एम आस्किंग फॉर सर्टेन थिंग्स बिकॉज़ ऑफ योर प्रोजेक्ट और आवर प्रोजेक्ट, बिकॉज़ दैट्स माय एज़ वेल। तो हर बार वो टैंट्रम नहीं होता, पर वो जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, कुछ एक्टर्स ने जो टैंट्रम थ्रो किया होता है, उसकी वजह से वो गड़बड़ हो जाती है। ये चीज़ आप देखिए रिलेशनशिप में भी होता है, ट्रस्ट इश्यूज़ कैसे आते हैं? आपके पहले बुरे एक्सपीरियंसेस, maybe I am asking to talk it out. Maybe I am fighting with you because I want our relationship to be healthy. पहले वालों ने अगर आपको बहुत तंग किया हुआ है, आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आई एम ऑल्सो थ्रोइंग टैंट्रम। आई एम आस्किंग फॉर समथिंग सो दैट जो हम एक साथ में चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, वो अच्छा हो। सो एज़ फार एज़ दिस ट्रस्ट थिंग इज़ कंसर्न्ड, मैं उसकी वो बात मेरे यहाँ छप गई है। कि भाई सारा चेक वेक करना पहले कर लो, उसके बाद जब आपने ट्रस्ट कर लिया ना, फिर चेक मत करो। फिर सामने वाले को छोड़ो, आपको लगा मैंने देख लिया 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने जो मुझे कैरेक्टर प्रॉमिस किया गया था ऐसा नहीं है, आप एक बार सामने वाले को इन्फॉर्म कर दो, इधर से डिस्टर्ब मत हो। फिर आराम से करते रहो, जिस दिन आपको लगा कि नहीं इट्स नॉट गोइंग दैट वे, उसके बाद टाटा बाय-बाय, ये मैंने नोटिस पीरियड है, मैंने साइन किया, उसके बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बट उसके बाद ना हर दिन कि यार इस सीन में तो मेरी लाइन ही नहीं थी। 1 महीना हो गया मेरा तो फुटेज ही इतना नहीं आया। ये सब नहीं करना है। सिमिलरली रिलेशनशिप में हाँ, ओके ही शी दैट मीन आई एम सेइंग कि कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है। अब जैसे अगर आप मुझसे पूछें, मैं नेचर से बहुत सीखती हूँ। अम, मैं अगर अभी जैसे मैं बता रही हूँ, एक पिजन ने बाहर अंडे दिए हैं। शाम होते ही चिड़िया अपने घर चली जाती है। उनमें कितना कलेजा है कि जब उन्होंने अंडे दे दिए ना, उन्हें पता है, इनका ध्यान रखना है। तो अगर मैं खाने की के लिए चावल-वावल भी डालती हूँ ना, वो डर के पीछे हटती है और वो अपने अंडों को वो रात में यहीं रहती है, वो नहीं जाती। सो दे गो अगेंस्ट देयर नेचर। वो मतलब मैं चावल डाल रही होंगी ना, वो उड़ के कहीं और नहीं जाती, वो थोड़ा-सा पहले-पहले डरी थी, फिर थोड़ा पीछे हटती है, अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया है और वहीं रहती है। बारिश जब होती है, हम सब ऐसे परेशान होते हैं, हैव यू सीन पेड़-पौधे, वो जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं, बच्चों को देखकर जितनी चीज़ें सीखने को मिलती है, हाय भगवान! कल किसी का सर फोड़कर आए होते हैं और आज वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। सो मैं नेचर को देखकर मुझसे मेरे को ऐसा लगता है, यू नो देयर इज़ सो मच दैट वी रियली कैन लर्न उनसे जो नहीं बोलते हैं। अब जब व्हेन आई सी सम यू नो सो मच हौच-पौच, कचर-कचर आस-पास ना, तो मैं बैठ के शांति से सोचती रहती हूँ, यार क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में? तो मेरे घर ना एक तुलसी है, अजीब रिश्ता है हमारा। मैं 10 दिन बाहर रहती हूँ, पानी नहीं दे रहे। अब मुझे पहले लोगों ने बोल दिया, "अरे ठंड का मौसम है ना।" भाई अभी गर्मी चल रही है। जब मैं वापस आती हूँ ना, वो ऐसी रहती है, पर वो खत्म नहीं होती है। 10 डेज़ क्या होता है और 10 का 12 भी हुआ होगा। जब मैं आती हूँ, मुझे उस पर इतना प्यार आता है, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं पप्पियाँ भी ले लेती हूँ। फिर मैं बहुत के ध्यान रखती हूँ, ये वो एंड ऑल दैट, और वो ना फर्स्ट डे ही देखना ऐसे खड़ी हो जाती है। फिर मैं उसका ध्यान रखती हूँ, फिर वो खिल जाती है। फिर मैं नॉर्मल रूटीन में आ जाती हूँ कि हो गया, अब इतनी पप्पियों की ज़रूरत नहीं। फिर थोड़े दिन बाद मुझे वापस याद आता है, तो मैं क किस दे देती हूँ। लुकिंग एट हर आई रियलाइज्ड वन थिंग, जब कि ना रिलेशनशिप भी वैसे ही है। आपको फ्रूट चाहिए ना, तो आपने गार्डनर माली को देखा है, वो पेड़ बनते तक वेट करता है। हमारे पेरेंट्स कैसे करते हैं यार, उनको तो फ्रूट भी नहीं चाहिए। वो चाहते हैं आप अपने करियर में सेटल हो जाओ। वो सिर्फ़ आपका ख़्याल रखते रहते हैं। बोलते हैं हाँ, ये मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, वो ज़माने गए, अब कोई नहीं सोचता, सबको पता रहता है, तुम किधर चले जाओगे मुझे नहीं मालूम है। सो व्हाई वी कैनॉट फॉलो द सेम थिंग इन अ रिलेशनशिप? मतलब आप ना 4 दिन ध्यान रखोगे, अब मैंने 4 दिन अच्छे से मैं रहा हूँ, तो मुझे ये चाहिए। हाय, हाय! 4 दिन में? 4 दिन में तो मेरी तुलसी अपनी जगह पे वापस नहीं आती। और अगर मैं 4 दिन में उसके पत्ते तोड़ने लग जाऊँ, तो जितना मैंने उसका 4 दिन में प्यार नहीं किया, वो खत्म नहीं हो जाएगी। आप 2 दिन कुछ कर लो, मैं 1 महीने तमीज़ से, अरे! ऐसे थोड़ी होता है यार। आप व्हाई यू हैव टू लाइक व आप क्यों कर रहे हैं? वो
वो मेरी तुलसी है, मुझे उससे शी इज माई। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जब ये करते हैं ना कि आप एक रिलेशनशिप में थोड़ा-सा देते हैं और फिर एक डिमांड करते हैं कि मेरी ज़रूरतें हैं, माय फाइनेंशियल नीड, माय फिजिकल नीड, माय इमोशनल नीड, दिस दैट वो मुझे अब चाहिए। तो बॉस आपको फिर उस तुलसी से प्यार नहीं है। तो फिर आप ना उस फ्रूट के लिए तो ठीक है, तो कम से कम पेड़ बनते तक तो रुको, फिर आप नहीं भी माँगोगे उसमें फ्रूट आने ही आने हैं। उतना तो पेशेंस रखो, पेशेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं जब कोई प्रोजेक्ट साइन करती हूँ, हाँ, मैं घबराती हूँ बहुत। बट ये वाला जो मेरा फंडा है ना, इट वर्क्स। जब मैं सोचती हूँ सोनल रुक जा, पेशेंस रख, अभी नहीं होता, अभी जो मैं देयर इज़ नथिंग टू डू, देयर इज़ नथिंग टू डू। फिर मुझे लगा कि नहीं, तू अपना काम करना, तुम अपनी लाइन्स याद करो, तुम ये देखो कि क्या। फिर जब मैं सेट पर गई और मैंने शूट करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि ऐसे पेशेंस था ना, शांति रखो ना, तब समझ में आएगा कि देयर इज़ सो मच टू डिस्कवर। और जब मैं जो सेट के बाकी लोग हैं, डायरेक्टर थे, हम सब डिस्कस करते थे, उस सीन में जब पढ़ती थी तो लगता था कुछ नहीं है। बट देन वो सीन जब डेवलप होता था, तो जो सैटिस्फैक्शन होती थी, अब मैं सिमिलरली इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं क्यों बार-बार मेडिटेशन और ब्रीथिंग बोलती हूँ। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप नर्वस होते हैं। ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जो आपने पहले फेस नहीं किए हैं। ये जो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, इट वर्क्स हाँ। पर मैं और एक मेरा लॉजिक सिंपल है। आपको फ्रूट चाहिए ना यार, आपको पेड़ से प्यार नहीं है। देन यू लुक फॉर योर फ्रूट, जो कोई और फ्रूट दे रहा है उसके पास चले जाओ, मार्केट से खरीद करके ले आओ। आप ना उस पेड़ को, बहुत लोगों को उस पेड़ से मोहब्बत है। बहुत लोगों को वो जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, एक जॉब कोई और कर रहा है, एक उस एक पोस्ट जिस पर आप हैं, बहुत लोगों को सिर्फ़ उस चीज़ से मतलब है। अब आप पैसे के लिए एक्टर बनना चाहते हैं, आप फेम के लिए एक्टर बनना चाहते हैं, आप इन यू कैन अर्न मनी फ्रॉम एल्सवेयर लाइक व्हाट? हमें चेक मिलता है 3 महीने बाद शूट के, और उस महीने के खत्म होने के बाद, और वो तीसरा महीना खत्म होने के बाद, व्हिच कम्स डाउन टू 5 मंथ्स। पैसे के लिए आप यहाँ आ रहे हो, बहुत है जहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जस्ट थिंक ऑफ इट। फेमस होने के लिए आप कर रहे हो, नाउ देयर आर सो मेनी प्लेटफ़ॉर्म्स। आप रील्स बना लो, पहले टिकटॉक था, आप यूट्यूब चैनल शुरू कर लो, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने लग जाओ, सो फॉर एवरीथिंग। सिमिलरली इफ यू आर विद अ पर्सन फॉर पर्टिकुलर थिंग कि मेरी फाइनेंशियल नीड, मेरी फिजिकल नीड, मेरी ये नीड, आप जाओ बाहर, आपको लोग मिलेंगे, वहाँ से ये नीड्स पूरी करो। आपको वो इंसान चाहिए क्या? तो आप उस इंसान के साथ रहो, वरना बहुत लोग हैं जो एक्चुअली उस इंसान की बहुत वैल्यू करते हैं और उसके साथ रहना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट आई फील। एंड देन एक लाइन है, या आई गेस डायलॉग था किसी वेब सीरीज या मूवी का, वो मेरी अब मेरा स्टेटस भी है। मैंने सालों से अपना स्टेटस नहीं चेंज किया था व्हाट्सएप का, फिर मैंने जब वो सुना, मैं ऐसे दीवानी हो गई। एंड इट इज कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं, वरना मैंने गूगल भी किया था कि क्या है एग्जैक्टली तो उसका मतलब है कि जिस दिन आप जिस रोज़ किसी और की मदद करने लायक हो जाओ, वो दिन इबादत का है। ये नहीं था कि उस दिन आप कुछ बन गए। मेरे को अभी भी रोना आ रहा है। उसमें ये नहीं लिखा था कि तब आपने कुछ अचीव कर लिया। आप लायक हो गए, आप कोई तोप हो गए, वो दिन इबादत का है। सच अ ब्यूटीफुल लाइन इट इज़। Because the day you are, at a situation, at a place when you can even guide somebody, यू हैव अचीव्ड ऑलरेडी, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। वो दिन इबादत का है, मतलब यू आर द ब्लेस्ड वन, यू आर द चोजन वन। मेरी ऑपरेटेड आईज हैं, मेरे को बहुत झमेले होते हैं, मेरी आंखें बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं, मेकअप के लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मैं ग्लिस यूज नहीं कर सकती हूँ रोने के लिए। तो मैंने ऑब्वियसली, मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया तूफानजन, इट इज़ फॉर आईज़ ओनली। तो अगर आप इमोट करके, आपके पास उतना टाइम नहीं, फट से कट कट हो रहा है, या डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा आँसू चाहिए, तो मैं जब मैं बच्चों के साथ शूट करती हूँ पर्टिकुलरली,
तब मैं उनको, पेरेंट्स को बोलती हूँ कि बच्चों की आँखें हैं, ग्लिस फ्लिस मत यूज़ करो। नेचुरली आ रहा है, वाटर स्प्रे यूज़ करो, पानी है, इट्स फाइन। बट आप मैं उनको तूफानजन के लिए, मुझे याद भी नहीं, मुझे जितना याद है, किसी मेकअप दादा ने नहीं बोला होगा, वो क्यों बोलेंगे मुझे? कहीं केयर थी ना मेरे लिए। वो देते रहते हैं मुझे ग्लिस, लो, वो क्यों मेरे को तूफानजन ला के देंगे या मुझे बोलेंगे आप आगे के लिए भी लेना। तो जब मैं आज बच्चों को बोलती हूँ या उनके पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप बच्चे हैं, उनकी आँखों के साथ खेलना नहीं है, आप प्लीज़ आप तूफानजन लेकर आओ। उसके बाद उनका उनका डिसीज़न है कि वो कर रहे हैं कि नहीं। और जब मैं उस बच्चे को वो जो आँखों में इरिटेशन होती है उससे फ्री होते देखती हूँ, या जब मुझे बोलते हैं कि अरे दीदी ये तो बहुत अच्छा है, ठंडा-ठंडा लग रहा है और पानी भी आ जाता है, काम भी हो जाता है। मैं जानती हूँ मुझे कितनी खुशी होती है कि मैंने बहुत छोटू-सा चीज़ कोई भी बता देता। और कई बार वो सेट के मेकअप दादा के पास ग्लिस के साथ तूफानजन भी होता है, पर उन्होंने नहीं सजेशन दिया होता। वो दिन होता है जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया। देयर इज़ दिस फ्रेंड ऑफ माइन, मैं हमेशा हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ना आपकी लाइफ में किसी चीज़ के लिए आता है। आज मैंने मैम से भी बात की, अगर कोई मुझसे पूछेगा एक्टिंग में, प्रोफ़ेशन में कोई मेरा गुरु है, मुझे विक्रांत ने बहुत सिखाया है, बहुत। इट स्टार्टेड विद डबिंग, और मैं हर जगह डबिंग डबिंग मेंशन करती हूँ कि पहले ना जब मैं जो लाइन्स डब करती थी, जब मैं सुनती थी, पता चल जाता था। मैं ऐसे बात कर रही होती थी कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर, लेकिन तुम आए नहीं। तो वो जो डबिंग वाली लाइन है ना, वो वो ऐसे सुनाई देती थी। मैं स्टूडियो जाकर डब करके आती थी, एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, और ऐसा होता था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर के थक गई, लेकिन तुम आए नहीं, और आज भी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो वो जो डबिंग की लाइन बहुत बकवास आती थी। मुझे समझ में नहीं आता था। आज मैं फ़ोन पे डब करती हूँ। मुझे पता होता है ये वो लाइन है जो मैंने डब की है, और उसके बाद मैं बैठी होती हूँ, मैं अभी भी कन्फ्यूज़ होती हूँ कि इन्होंने एक्चुअल वॉइस यूज़ किया या डब का वो इतना क्लियर आता है। दैट गाय हैज़ टॉट मी सो मच। तो हम पहला एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे और उसने मुझे बोला कि तू हाथ बहुत यूज़ करती है। एंड आई वाज़ लाइक कि आई एम अ लिटिल एनिमेटेड पर्सन, मैं करती हूँ, तो मैं करूँगी। अब वो उस वक़्त ऐसा था कि हाँ यार, ये समझ नहीं रहा, ये डायरेक्टर है तो बहुत, ही इज़ एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर आल्सो। सो ही वाज़ डायरेक्टिंग द प्रोजेक्ट एज़ वेल। सो मुझे लगा यार ये ना बहुत, क्योंकि डायरेक्टर है तो ज़्यादा बोल रहा है, बट मैं बहस नहीं करती। मैं, और हमें ऐसे डायरेक्टर्स मिलते भी हैं जहाँ आपको पता होगा कि नहीं, हम मुझे कन्विंस कर पा रहे हो आप, या क्या बोल रहे हैं यार, कुछ भी बोल रहे हैं, बट आई रिस्पेक्ट दैट पोस्ट। आप डायरेक्टर हैं, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, आप जो बोलेंगे मैं नहीं भी एग्री करती हूँ, चाहिए आपको, लो खत्म करो, लेट इट बी। सो उस वक़्त मेरा ऐसा था कि हाँ भई, नहीं करूँ हाथ ज़्यादा यूज़, ओके। फिर मैंने सोचा, मैंने इंटेंशनली इस चीज़ पर वर्क करना। उसने मुझे एक चीज़ बोली कि जब तू हाथ कंट्रोल करेगी ना, तू यहाँ से ज़्यादा बोलेगी। कब हुआ मुझे पता नहीं। थोड़ा-थोड़ा करके शुरू हुआ, एंड नाउ सीरियसली मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं रियल लाइफ़ में इसको कैसे बोलूँगी? अभी मैंने शूट की, देयर वाज़ दिस किड, उसको देखकर लग रहा था, उसके अंदर वो आग है, मुझे कुछ तो कर दिखाना है, मुझे एक लाइन में अपने आप को प्रूव कर देना है। हम ऐसे खड़े हैं, एंड ही वाज़ लाइक कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं उसको वहीं छोड़कर आया था, और मैं ऐसे उसकी आँख हाथ देख रही। अगले लाइन पे वो बोल रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब ये मैं कमज़ोर रह गई कि मैं बहुत चाहती थी उसे बोलना कि बेटा ऐसे, वो इतना छोटा भी नहीं है, थोड़ा बड़ा ही है, बट स्टिल मुझसे छोटा है, तो आई विल से कि तू एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसे हाथ इतना हिलाता है क्या? एक बार देख हाउ यू आर डूइंग इट। मेरा है, मैं थोड़ी ऐसी चपर-चपर हूँ, बट मेरे को ओपन अप होने में टाइम लगता है, तो वो मेरी कमज़ोरी थी कि मैं उसे नहीं बोल पाई, आई डोंट नो, या उसके वाइब्स ऐसे थे, आई नो इट ऑल। हाँ, वो सबको बताता था, इतने सीनियर एक्टर्स मेरे से भी बहुत, इतने जिनके सामने मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो उनको भी बताता, आप ऐसे करो ना, हम ऐसे करेंगे। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ही विल नॉट टेक इट। बट फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ठीक है ना, वो उसका कॉल था, मेरी गलती हो गई। मुझे मौका नहीं मिस करना चाहिए था उसको ये बोलने के लिए कि शायद वो सोनल उस दिन नहीं समझती। उसके 6 महीने बाद या साल भर बाद वो इस बात को समझती भी नहीं, इम्प्लीमेंट भी करती, और वो उसका इबादत का दिन आता। मैंने उस मोमेंट पे जब मैंने उसको ऐसे-ऐसे और ऐसे करते देखा, यहाँ से विक्रांत को इतनी दुआएँ दी हैं, इतनी दुआएँ दी हैं।
एंड मैंने भगवान जी को इतना थैंक यू बोला कि आई फाउंड अ टीचर जो मेरे हैकर होने के बाद भी मुझे बोला कि तू ऐसे करती है क्या, तू ले ले ईगो में, तू ये तू वो, बट तू जस्ट ट्राई इट। और उस बच्चे को वो टीचर नहीं मिल पाया जो उसको ऐसे बता सके। एंड देन मुझे मैम मिली कि मैं सोचती हूँ बाद में कि उस वक़्त मैंने ऐसे गलती कर दी क्या? शायद मुझे सोचना चाहिए था, और मैंने वो फ़ॉलो किया और आज मैंने उस चीज़ पर काम किया। और मैं सोचती हूँ सोनल, अगर तू स्क्रीन पर ऐसे-ऐसे करती होती होगी, तो कौन ये देखता होगा? सीरियसली वो टेक ओके हुआ, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो ही सीन लगेगा। पर मुझे एज़ एन एक्टर समझ में आया, नहीं, हम रियल लाइफ़ में ऐसे नहीं बोलते हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन मुझे पर्सनली छू गई थी। मेरी मॉम की विश थी कि मुझे किसी एक बच्चे को, मैं बहुत बड़े सपने नहीं देखती, किसी एक बच्चे की पढ़ाई जो है वो फाइनेंस करनी है। अब नाउ शी इज़ नॉट विद अस। मेरी वो बहुत दिली तमन्ना रही कि हाँ, उनका ये है जो, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि अम्मा का था इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट हाँ, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आज जब मैं किसी को कुछ भी थोड़ा बहुत बता यू विल गेट एन नंबर ऑफ पीपल टू फाइनेंशियली हेल्प यू। यू विल गेट फ्यू हू विल हेल्प यू ग्रो। आप किसी को वो बता सकें, वो गाइड कर सकें, थोड़े मोमेंट के लिए प्रोटेक्ट कर सकें। जब आपको लगे ना आपने ऐसा किया, तो चौड़े होने की बात नहीं होती। उस दिन शांति से बैठो, जिस इंसान ने आपको वो सिखाया है, हर उस इंसान को थैंक यू बोलो, उनको बोलो, बिकॉज़ वो दिन इबादत का है। आई रियली विश कि भगवान जी मुझे हर दिन में एक ऐसा मोमेंट दें जब मैं उनको थैंक यू बोलूँ। मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे दूसरों की मदद करनी, नहीं। मुझे ना ब्लेस्ड फ़ील करके बड़ा अच्छा लगता है। आई जस्ट फ़ील कि हाय, मैं उनकी फ़ेवरेट हूँ, कि मैं ये कर पाई, मैं वो somebody who's having the knowledge बट उसको वो मौका नहीं मिल रहा है शेयर करने के लिए। somebody who's having the experience पर उसको वो मौका नहीं मिल रहा है, उसको वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ बहुत बोलती हूँ, मुझे पता है। मुझे ये भी लगता है कि लोग पक जाते होंगे। बट इट हैज़ हैपेंड विथ मी। मैंने कभी कुछ देखा, कभी कुछ सुना, वो बहुत टाइम के बाद काम आया और यहाँ छू एक मोमेंट में यहाँ छू गया और वो मेरी लाइफ़ में बहुत काम कर गया। सो मैं ना ऐसे पहले रहती थी कि तुम अकड़ के रहोगे सेट पे तो मैं भी ऐसे रहूँगी। अब नहीं होता, सोच कर नहीं। मुझे पता है आई वांट टू गिव लव टू एवरीवन। मुझे रात के 2 बजे तक या सुबह 4 बजे तक काम करना है, भाई मैं हँसते-खेलते करूँगी। धीरे-धीरे ना सब जो ऐसे-ऐसे रहते हैं, ऐसे-ऐसे रहते हैं, वो सब स्माइल करने लगते हैं। तो आप कैसे 2 बजे जाग कर रहोगे? आप कैसे सुबह 4 बजे तक हँसते-खेलते काम करोगे? ऐसे ही कर सकते हैं। सो व्हाट आई फील इज़, मतलब आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। मैंने हर चीज़ को, हर अपनी पर्सनल चीज़ जो मैंने सीखी, 100 बार पापा कॉल कर चुके हैं, अभी मैं आपको बता रही हूँ, पता नहीं वो कैसा वीडियो मेरा दिख भी रहा होगा कि नहीं। मैं कुछ भी सोचती हूँ, ही इज़ द वन जो फट से मेरे दिमाग में आ जाते हैं। सो व्हेन इट इज़ अबाउट प्रोफेशन, ही इज़ देयर इन माय माइंड। सिमिलरली जब मैं कुछ पर्सनली कर रही हूँ, माय प्रोफेशन इज़ वेरी मच देयर इन माय माइंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत सिंपल हैं लाइफ में, कि व्हेन यू आर विद समबडी यू लव, तो उस टाइम ना आपको ये नहीं लगता मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, व्हाटएवर व्हाटएवर, यू एन्जॉय इवन द साइलेंस। और उस चक्कर में मे बी, और ये कि नहीं, मैंने ये डिसीजन ले लिया है तो मुझे वो चीज़ निभानी है, सोसाइटी की वजह से, अपनी नज़रों की वजह से, इसकी उसकी वजह से, आप खुद के साथ भी गलत कर रहे होते हो, आप उसके साथ भी गलत कर रहे होते हो। सिमिलरली इज़ द प्रोफेशन, यू नो मेरे मॉम ये चाहती थी, मेरे पापा ये चाहते थे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, ये वो। व्हेन यू फॉलो योर ड्रीम, व्हेन यू फॉलो योर पैशन, व्हेन यू डू व्हाट यू लव, यू विल लव व्हाट यू डू। मैंने बोला ना कि आप ना किसी इंसान के साथ खाली ऐसे हम बात नहीं करते, नहीं कि करनी ही नहीं है बात मेरे को, बट स्टिल आप ना दिल से खुश रहेंगे, बिकॉज़ यू आर विद द पर्सन यू लव। और जब आप एक ऐसे इंसान के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमने शॉपिंग की, हमने ये किया, हमने वो किया, यहाँ से कनेक्ट नहीं है ना, आप जब फाइनली शांति से बैठोगे, यू विल फील अलोन, यू विल फील हॉलो।
एक काम है, आपको बहुत पैसा मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है, ये है, वो है, पर आप उस काम को एन्जॉय नहीं कर रहे हैं ना, आप बोलोगे यार मैंने बहुत सही डिसीजन लिया इस प्रोजेक्ट को हाँ बोलकर, आज मेरा बैंक बैलेंस ये है, आज मैं इंटरनेशनल उसका हेड बन गया हूँ, ये वो, पर वो जो हॉलोनेस है वो नहीं जाएगी। इसलिए आई रियली बिलीव इट, व्हेन यू डू व्हाट यू लव, यू विल लव व्हाट यू डू। इसलिए वो 16 घंटे, 18 घंटे हम डेढ़ शिफ्ट भी करते हैं। मैंने अशोका करते वक़्त 3 दिन के बाद सोई थी। आई वाज़ डूइंग 2 शोज़ एट अ टाइम, मेरी दुर्गा एंड रुद्र के रक्षक। एक सेट से निकलती थी, दूसरी जगह नाइट करती थी, वहाँ खत्म करके घर आती थी, फ्रेश होती थी, दूसरे सेट पे जाती थी, फिर 5 डेज़, क्योंकि जो मेरी सिस्टर प्ले कर रही थी, जो दुर्गा प्ले कर रही थी, उसका बर्थडे का सीक्वेंस था, तो दे वांटेड द होल फैमिली। वो ड्यूब दिन भर वो ड्यूब के साथ काम चला लेते थे, रात को मैं उनके पास जाती थी, अपने क्लोज़र्स देती थी और जो ऐसे सीन्स होते थे जहाँ पे मेरा रहना ज़रूरी है, 5 डेज़। किसी को पता मुझे नहीं पता चला, because I was doing that is love. So ये पता नहीं मैं कितना कन्वे कर पाई, but whatever I shared from heart. So जैसे फाइनली हमारी शूट का पैकअप टाइम आता है, तो मेरे सेशन का पैकअप टाइम आ चुका है। दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। इतनी सारी चीज़ों में अभी भी मैं बोलूँगी, जो सबसे एक चीज़ है जो मुझे यहाँ छू गई है इज़ कि जिस दिन किसी और के काम आ सको वो दिन इबादत का है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड बिफोर वी पैक अप, आप में से किसी को भी कुछ पूछना है या आप लोगों को अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है, आई एम वेटिंग। हेलो सोना, मेरा थोड़ा गला खराब है तो आपको आवाज डिफरेंट आ रही होगी। मैं ही थी जो बोल रही थी कि आपको शूट बोरिंग तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे देखने में बोरिंग लगा था। आई वाज द वन, मीना आंटी। ओके, जस्ट वांट टू ब्लेस यू कि आप जितने बबली पर्सनालिटी हो हमेशा ऐसी रहना। दिस इज द डिवाइन गिफ्ट। तो हंसते मुस्कुराते बबली बबल्स की तरह हम रहना। मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं। एक तो जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को मूवी वर्ल्ड में लाते हैं, तो मैं कहीं बाहर हूँ, पहाड़ों में आई हुई हूँ, इन द अपर हिल्स, रानी चौरी जगह है उत्तराखंड में कनेक्शन पुअर है। लेकिन हाँ, ये जो पेरेंट्स बहुत एम्बिशियस हैं अपने बच्चों के लिए, उनको चिल्ड्रन पैजेंट शोज में लाते हैं, बच्चे रो रहे होते हैं, उनको स्टेज पे भेजते हैं और कई बार एक्टिंग भी कराते हैं, और उस एक्टिंग में कुछ ऐसे सीन होते हैं जो उनको विटनेस करने पड़ते हैं, कुड बी रेप, कुड बी अदर मर्डर एंड ऑल। तो बच्चों को कितना ट्रॉमेटिक होता होगा। तो ये मतलब पेरेंट्स की एम्बिशन है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब सेंसिटिव है, हम लोग सब ह्यूमन है, पर फिर भी ऐसे सीन में कहीं जरूरत भी होती है। तो इसमें आपका क्या टेक है कि व्हाट डू यू से, कि या वो बच्चों को बताया ही नहीं जाता क्या हो रहा है, अलग अलग क्लोजअप शॉट लेते हैं, कि एक्चुअली कुछ ट्रिक्स होती हैं इसके पीछे? मुझे नहीं लगा कि नहीं मैम, सी बच्चों को मोस्टली जब ऐसे कोई सीन्स होते हैं, जब तक वो छोटे हैं कि वो नहीं समझ सके, तब तक उनको सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि तुमको रोना है, कि मम्मा तुमको छोड़कर चली गई है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, व्हेन वी इमोट, मैं बहुत सारे ऐसे सीन्स करती हूँ जो मेरी रियल लाइफ में मैंने नहीं एक्सपीरियंस किए हैं। तो मैं इमोशन कोई और थॉट से लेकर आती हूँ। तो मोस्टली बच्चों को नहीं बताया जाता, ऐसा कुछ होता है तो। उनको ये बोला जाता है कि मम्मा छोड़कर चली गई, आपका फेवरेट जो टॉय है वो हटा दिया है या समथिंग लाइक दिस, और उनको ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता। और इनफैक्ट नॉट ओनली बच्चे मैम, अभी जैसे मैंने जिस बच्ची के साथ शूट किया, शी वाज़ 13 समथिंग, तो उसके उसकी मॉम ने डिसीजन लिया है मैं ये सब अपनी बच्ची को अब नहीं करवाऊँगी, बिकॉज़ उनकी एज नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ। और उनको जब ये चीज़, अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि एज़ एन एक्टर, और वो बच्ची बहुत फ़ोकस्ड है, वेरी प्रोफेशनल। उसने शूट में कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें खुद की, उसकी मॉम सेट पे भी नहीं थी, वो वैनिटी वैन पे थी। जैसे मैं रो रही हूँ, आई एम प्लेइंग हर मदर, उस वो अपने हाथ हाथ रख कर के मुझे ऐसे-ऐसे करती थी। ये सब उसने खुद से किया। सो प्रोफेशनली एट दैट एज, ऐसे बच्चे जब हमको काम करते दिखते हैं तो समझ में आता है कि इट्स हर पैशन। बट येस, डूइंग ऑल दीज़ सीन्स, एवरीवन टेक्स केयर ऑफ इट कि उनको ये चीज़ें नहीं बोली जाएँगी और कुछ और एक्स वाई ज़ेड बोल करके सीन करवाया जाएगा। बट येस, आई हैव विटनेस्ड फ्यू किड्स। एक बच्चा था, उसको अगर मैं शॉट के बीच में ऐसे कर देती थी तो ही वाज़ वेरी अनकम्फर्टेबल विद द टच। और उसके साथ मुझे अभी भी याद है, वो उसे शूट नहीं करना था। कोई भी बता सक उसने कभी बोला नहीं, वो सिर्फ़ शॉट देता था और वो बार-बार अपनी मॉम को ऐसे देखता था। उसको देखकर पता चल रहा था कि उसको काम नहीं करना। हियर आई विल से कि ये बात आती है पेरेंट्स की, उनको डिसीज़न इस चीज़ से नहीं लेना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। इफ योर किड इज़ एन्जॉयिंग इट, या तो मेबी थोड़ा आज वो अभी तक वो बच्चा काम कर रहा है, बहुत बड़ा हो गया। ही इज़ डूइंग अ फैब जॉब।
तो शायद कहीं ना कहीं अब लेटर स्टेज में आकर के उसने एंजॉय करना शुरू कर दिया होगा, या मे बी उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए था और बाद में स्टार्ट करवाते। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया। उनको पता था कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत एक्टिव है, उसको खेलना कूदना एक्टिंग करना पसंद है, व्हाई नॉट टू यू नो चूज इट एज अ प्रोफेशन। और जब आप बचपने से शुरू करते हैं तो आपको इस एज में आकर के हम लोगों को, मैं जैसे मैम से ही बात कर रही थी कि बहुत सारी चीजें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी। अब मैं अगर बचपन से रहती तो वो चीजें कब की सीख चुकी होती। सो वो एक बेनिफिट मिल जाता है अगर आपको पता है कि योर किड एक्चुअली वांट्स टू बी एन एक्टर, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है। रेस्ट लाइक आई वाज डूइंग बड़े अच्छे लगते हैं। तो जो मैंने जैसे बताया कि मेरे और शुमोना के सीन्स होते थे, उसमें जो छोटा बच्चा था, अब उसके दिखाया ये था कि हम दोनों का बॉन्ड उस बच्चे की वजह से बना। तो उस बच्चे को रुलाया कैसे जाता था कि अब उसके रोने वाले सीन ही है। तो कभी उस पे पानी डाला जाता था, कभी उसको हल्का टिक-टिक किया जाता था। तो वो बच्चा इतना छोटा था कि उसको जो भी बोलना है वो ओया-ओया सुनाई देता था, हम यही ले लेते थे दैट द किड इज़ क्राइंग। बट दैट किड वाज़ 45 डेज़ ओल्ड। उसकी मॉम ने उसका हेड शेव कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाल बहुत पैची थे और सेट पे ऐसे ही किसी ने जिनका एक्टिंग मतलब कैमरे से कोई लेना-देना नहीं था। मतलब मेबी किसी टेक्नीशियन ने या किसी ने ऐसे बोल दिया होगा, या उनके साथ के लोगों ने किसी ने बोल दिया होगा कि अरे स्क्रीन में अड़ोस-पड़ोस वालों ने कि उसके वो पैचेज़ दिखते हैं। 45 दिन के बच्चे का हेड शेव कर दिया उन्होंने। और हम लोगों ने बोला यार आप कैसे करते हो? हमने बोला है क्या? एंड देन फिर मैं और शुमोना हम बहुत ध्यान रखते थे उस बच्चे का। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ, आई वाज़ नॉट प्रेजेंट दैट डे, शुमोना वाज़ होल्डिंग द किड और एक नेट होता है मेटल का, उसपे रस्ट भी था, लाइट कट करने के लिए, लाइट कम करने के लिए लगाई जाती है। शी वाज़ होल्डिंग द किड और उसके सर के पास से वो नेट गया। एंड ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा वो बच्चा है, किसी और का है, अपना भी होगा तो भी और दूसरे का भी है, बच्चा है। उसके बाद से शुमोना ने ये सिस्टम रखा कि जब तक उसका फेस नहीं दिख रहा है, वी विल यूज़ अ डॉल। सो कभी-कभी हम भी इनिशिएटिव लेते हैं कि नहीं, जैसे मैं एक शूट कर रही थी जिसमें एक सीन था, मार्च का, अप्रैल का टाइम, बहुत धूप थी और मुझे और मेरे बच्चे को बार-बार वॉक करना था। तो जैसे ही होता था मैं उसको बोलती थी आप वैनिटी में जाकर बैठो इवन इफ इट इज़ फार। प्रोडक्शन वालों को था कि क्यों? मैं बोलती थी यार यू कैन नॉट बी इनह्यूमन। उस बच्चे के साथ एक केयर टेकर आया था, वो मुझे पीछे से इशारा कर रहा है कि उसको मत रियलाइज़ करवाओ दैट ही इज़ फीलिंग कि इट इज़ हॉट। तो कभी-कभी you cannot blame the industry all the time, you cannot blame like the parents all the time। कभी प्रोडक्शन वाले ऐसा करते हैं, वो अपना सोचते हैं, कभी उनके घर से ही जो लोग आए होते हैं। अब जो मैं ये बता रही हूँ किस्सा आपको कि जो रुद्र के रक्षक जब मैं करती थी, मैं साड़ी पहनती थी, जैसे ही शॉर्ट कट होता था मैं उस बच्चे के ऊपर अपना आँचल डाल देती थी। तो हम लोग करते हैं, वहाँ पर वी एक्चुअली टेक केयर ऑफ किड्स। बट दिस किड जो बड़े अच्छे लगते में था कि अब उसका काम हो गया कम। पैसे उसको पूरे दिन के ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि तुमने कम किया, बिकॉज़ वी वर यूजिंग द डॉल और हम लोगों ने रिएक्ट किया तो फिर प्रोडक्शन टीम को भी ऐसा लगा कि यार हाँ, बच्चे के साथ ऐसे नहीं कर सकते। थोड़े दिन के बाद हमें पता चला क्योंकि ब बालाजी के सारे शोज़ एक ही एक बड़ा-सा कंपाउंड है, उससे अलग-अलग जगह पे सेट है। सो वो लेडी ने उस बच्चे को पवित्र रिश्ता में आशा नेगी की बेटी बना दी। तो उसको जो टाइम मिल रहा है अपने बच्चे को रेस्ट देने का 45 डेज़, हाँ। और वो डेढ़ महीने मतलब 45 डेज़ हुआ, वो 3 महीने का हुआ होगा जब उसने पवित्र रिश्ता में भी उसको एनरोल करवा दिया। सो वो आधे टाइम उतना छोटा 3 महीने का बच्चा, यहाँ हमारे साथ मेरा बेटा बना होता था और फिर बाद में आशा नेगी की डॉटर बनता था। सो अब उस बच्चे को क्या अक्ल, वो तो 3 ही महीने का है। प्रोडक्शन वालों ने अपनी तरफ से किया, इट इज़ द मदर्स कॉल। बट हाँ, मैं मीन्स ये सब चीज़ें हैं जो व्हिच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दैट इज़ व्हाई देयर आर फ्यू प्रोडक्शन हाउसेज़ जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कॉन्टिलो हो गया, जिनका मैंने हनुमान किया है, या चक्रवर्ती ने अशोक सम्राट किया है। बालाजी में आप देखो जो बच्चे हैं वीकडेज़ में वो शूट नहीं करते, उनके ड्यूब करते हैं। वो वीकेंड में आएँगे, अपने क्लोज़ेस देकर चले जाते हैं। तो ये जो भी है, पीहू है, रूही है, ये जब भी जब तक छोटे थे वो वीक मंडे टू फ्राइडे नहीं आते थे। वो अपने क्लासेस अटेंड करते थे, स्कूल मिस नहीं करवाते हैं। एग्ज़ाम टाइम में आई वाज़ डूइंग रुद्र के रक्षक। रुद्र के रक्षक वाज़ हैरी पॉटर का इंडियन वर्ज़न। एग्ज़ाम टाइम पे उन बच्चों को बिल्कुल छोड़ा जाता था। वो अपनी पढ़ाई भी सेट पे करते थे, उनके सीन्स कम रखे जाते थे
और जब वो उनके पेपर होते थे वो पेपर देने के बाद आते थे, और अगर कोई ऐसा दिन है जब वो बोल देते थे कि भाई हम नहीं आएंगे, तो इट वाज फैंटेसी, वो दिखा देते थे बच्चा बेहोश हो गया, किडनैप हो गया. सो दैट वेज. एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोलना साथ में चाह रही थी, सॉरी. वो ओवर एक्टिंग की क्या जरूरत है टीवी सीरियल में? हम टीवी मैं बहुत कम देखती हूँ, टीवी बहुत कम मूवीज देखती हूँ, ओनली आर्ट मूवी डॉक्यूमेंट्रीज, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई मुझे बंधन नहीं है. एंड पर ये जो ओवर एक्टिंग, मैंने एक दो बार ट्यून इन किया, तो वो किसी को थप्पड़ मार रहे 3 बार जोर जोर से दिखा रहे, ठा 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 ठा, उधर मुंह हो रहा है, लाइक हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, या तो ऐसे लोगों, मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, डबिंग, मास्टरिंग, सारे लोग फ्लॉज फॉल्ट कर रहे हैं क्या? या हम ही, मैं ही गलत हूँ, या हमारे जैसे कई लोग जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वी स्टार्टेड अवॉइडिंग वाचिंग टीवी, क्योंकि मतलब एक्टिंग से ज्यादा ओवर एक्टिंग एंड वो है. आई मीन एक्टिंग बेस एसेंस है, लेकिन वो लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब मैं तो शर्म कर जाती हूँ कि ये देखने को मिल रहा है हमको, ये देखने को मिल रहा है. एंड आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्टर, एक्ट्रेस और व्हाट यू कॉल इट सीरियल. जस्ट कुछ भी जी टीवी में कुछ ऐसे देखा, आई वाज टेकन अबैक कि मतलब हमारा लेवल क्या है कि 3 बार थप्पड़ लगेगा तब हमें समझ में आएगा, चू 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 चू, तब हमें समझ में आएगा कोई स्लैपिंग हुई है, सास ने बहू को की है. सो वेरी डिस्गस्टिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग. योर कमेंट्स ऑन दैट इफ यू वांट टू say it or later, you're up to you. It is a question that I would love to answer, ma'am. ये it started with mostly जब सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की थी, तो आप देखिएगा जो वैम्स होती थी, वो जो मन में सोचती थी ना, वो बोलती थी. अब हम वीओ करते हैं कि मैं सिर्फ ऐसे सोचूंगी और आवाज आएगी उस वक्त वो. और जैसे ये बहुत बड़ा सवाल था कि जब सोती हैं तो फुल मेकअप में सोती हैं. बट ट्रस्ट मी, मुझे किसी ने एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट रियलिस्टिक एक्टिंग, मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को, हम शायद आज उस जगह इसलिए हमको नहीं होता, वी रियली वांट टू कीप इट एज सटल एंड रियलिस्टिक एज पॉसिबल. बट देन क्या होता है मैम, अगर मान लो कि मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं रियल लाइफ में ऐसे ही सोचूंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या सोच रही हूँ? देयर आर, जिसे हम कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी. कुछ चीजें होती हैं कि मैं अगर ऐसे सोच रही हूँ तो मैं अच्छा सोच रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ, अगर आपको डायलॉग नहीं दिया जाएगा यू विल नॉट नो. हो सकता है मैं यहाँ ये सोच रही हूँ कि अभी इसके बाद ना फोन रखने के बाद एक आदमी जिसका मुझे मर्डर करना है, और हो सकता है कि मैं यहाँ ये सोच रही हूँ कि अरे यार अभी पापा का इतनी बार फोन आ गया, मुझे बत्ती तो नहीं पड़ने वाली. हाउ विल यू नो? एक ही तरीका होता है, या तो साउंड देना, या कि मैं, तो मुझे गुस्सा है और ऐसे मतलब मुझे डर है. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें कन्वे करने के लिए करनी पड़ती है. अब बची बात आती है 3 थप्पड़ की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती. आज भी कुछ लोग हैं जो ओल्ड स्कूल फॉलो करते हैं, जो उस वक़्त होता था. बट टेलीविज़न इंडस्ट्री में जो सक्सेस सास भी कभी बहू थी और कभी किसी रोज़ कहीं न कहीं तो होगा, कसौटी ज़िंदगी की, इन शोज़ को मिला है, आज तक वो किसी को नहीं मिला है जिसमें वो क्या करते थे. So somewhere people still, why they love Big Boss, क्योंकि ड्रामा सबको पसंद आता है. तो वो है, आई नो. और स्पेशली ओटीटी के बाद, वेब सीरीज के बाद लोगों का चॉइस बदल गया है. अब क्या कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. बट देयर वाज अ टाइम जब तक वो उसको ऐसे करके नहीं देखेगी, तब तक मेरे को किसी पे कितना गुस्सा, जब सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ना, मैं सामने वाले को ऐसे ही देखती हूँ. जिसको मैंने ऐसे कर दिया मतलब वो खत्म है. बट और जब मैं ऐसे करूँ ना तो मेरे को बहुत प्यार है उस इंसान से, मतलब मैंने ऐसे किया ना तो मैं तेरे को घूसा मार दूंगी, मतलब इट्स अ लव. बट आप इमोट कैसे करते हैं? बट पर आप ये देखिए वो जो सक्सेस था, तो एंड देन व्यूअर्स चेंज, साइकोलॉजी ऑफ ऑडियंसेस चेंज. तो वो जो क्या था, वो लोगों ने पसंद किया है. सो अब वी आर इन एन इंडस्ट्री जहाँ पर जो एक्सेप्ट होती है. आज इतनी, अभी मैं कल जो मीटिंग करके आई, मेरा सर चकरा रहा है. Why people want to convince nudity is necessity? Why? If you want to show something which is realistic, हर कोई कपड़े उतार कर नहीं घूमता ना यार. So it is part of society. Maybe it is 80%, maybe it is 90%, maybe it is 95%. I want to stick to that 5%. So आपका वो जो 3 बार का थप्पड़ है, मुझे तो मजा भी आता है, मैं सच बता रही हूँ. At times you enjoy such stupid things.
ऐसे कौन करता है यही बोलने के लिए? बट सो दैट वेज आई एम सेइंग कि जो वो डायरेक्टर्स रह गए हैं ना, जो आज भी जिन्होंने खुद को अपडेट नहीं किया है, वो बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ मैम बड़े अच्छे लगते हैं, मेरा पहला प्रोजेक्ट था। एक सीन था, मुझे साक्षी मैम से अपने आंसू छुपाने थे बिकॉज़ मुझे पता चला है कि हाय मेरा पति जो है उसकी ऑलरेडी एक बीवी है जो शुमोना थी, और मैं आ रही हूँ एंड मुझे पता चल गया कि हे राम! वो तो साक्षी तन्वर का भाई है। अब वो मेरी क्लोज़ फ्रेंड जो मुझे इंसाफ दिलाना चाह रही है, तो मुझे ना आँसू छुपाने हैं। तो मैं उन्होंने बोला कि तुम आँसू पोंछोगी, तो मैंने ऐसे आँसू पोंछा, बिकॉज़ मुझे हाइड करना है। मैं ऐसे थोड़ी आँसू पोंछूँगी दिखाने के लिए कि हाँ, मैं रो रही हूँ, तुम्हें पता चल जाए। सो डायरेक्टर ने मुझसे बोला, "तुम रियल लाइफ़ में ऐसे ही पोंछती हो क्या?" उसके पहले ना उन्होंने मुझे बहुत ग्रिल किया था, बहुत ज़्यादा। एंड देन आई एम रियली थैंकफुल टू आकांक्षा जुनेजा। शी टोल्ड मी, "सोनल, यहाँ ना डायरेक्टर्स की नहीं चलती बेटा, बदलते रहते हैं। इसलिए ये लोग इतना ज़्यादा वो करते हैं कि उनको दिखाना होता है कि ये मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे रखो। सो इफ यू नो दैट यू आर डूइंग राइट, बालाजी वैल्यूज एक्टर, तो आप इफ यू आर राइट ये सब नहीं करना। मुझे पता चला तू सेट पे रोई, मेरा पहला शो था, 36 लोगों के सामने मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं और मुझे नहीं ऐसे अब्यूसिव लैंग्वेज की आदत थी। तो जब ये शूट किया तो उन्होंने बोला नहीं अगर तुम करती होगी तो बताओ, हम ऐसे ही शूट करेंगे। मैंने बोला हाँ सर, मैं रियल लाइफ में ऐसे ही करती हूँ। एंड सीरियसली अगर मेरे को रोना आ रहा है ना और मुझे किसी को नहीं दिखाना है कि मैं रो रही हूँ, तो मैं ऐसे ही आंसू पोंछती हूँ। और ये कब की बात है, 2013-14, जब मैं आई थी, मेरा पहला प्रोजेक्ट था, आई एम टेलिंग यू। तो तब मैंने ये बोला, हमने वो सीन किया, 10 दिन बाद डायरेक्टर प्रोजेक्ट से आउट था, मैं कर रही थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि कोशिश करनी चाहिए टू टेल देम कि सर ऐसे नहीं होता। कौन ऐसे बोलेगा? बट फिर यस, जैसे मैंने बोला वी रिस्पेक्ट दैट पोज़ीशन, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। अगर वो बोलेंगे ऐसा करना है, कोई बात नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुझे ऐसा लगा कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगेगा कि मेबी वो दोस्तों के पास चला गया होगा, उसके कज़िन ने ड्रॉप नहीं किया। मैं उतना हाइप नहीं करूँगी। पर डायरेक्टर बोल रहे हैं, "नहीं तुम माँ हो, तुम पहली बार में बच्चा नहीं मिला, तुम पागल हो जाओगी।" ओके। तो मैं पहली बार में हाय मेरा बच्चा कहाँ चला गया कर देती हूँ। बट when it is about a short story and all that, वहाँ कुछ नहीं होता। But when it is about a ongoing series, you you change things as per TRP. अगर क्या से TRP मिलेगी, प्रोड्यूसर को पैसे मिलेंगे, चैनल को पैसे मिलेंगे, ज़्यादा एड्स मिलेंगे, तो हम क्या ही करेंगे। But then internally we obviously we really want to do realistic. मैं सच बता रही हूँ। आजकल तो मेरी इच्छा होती है कि जो हम ऐसे मन में बोलते हैं और वीओ चलता है ना कि अब इसके बाद क्या सोनल, मैं चाहती हूँ कि मुझे वो डायलॉग भी ना दिया जाए। मैं सिर्फ़ ऐसे देखूँ और स्क्रिप्ट ऐसी हो कि देखने वालों को समझ में आ जाए कि वो ये सोच रही है अब इसके बाद क्या। दैट इज़ रियल। सो वी गॉट टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर द सेक ऑफ कन्वेइंग इट। अभी कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं मुझे हाँ, कुछ ट्रिक्स जैसे मुझे किसी ने दिए कि अगर आपको शौक दिखाना है, ऐसे शौक मैं थोड़ी होंगी रियल लाइफ़ में। व्हाट ट्रिक्स वी कैन डू इज़ कि मैं स्माइल करते हुए देखूँ और फिर मैं एक्सप्रेशन चेंज कर दूँ। सो वो, और अगर मैं नॉर्मल ऐसे आऊँगी, मैं एक्सप्रेशन चेंज करूँगी तो नहीं दिखेगा, फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। बट इफ आई एम स्माइलिंग और मैंने स्माइल रोक दी, तो शॉक डिटेक्ट हो जाता है। सो अगर रियलिस्टिक करना है तो फिर ये होमवर्क हम खुद करते हैं कि यार मुझे ऐसे नहीं करना है, मैं क्यों करूँगी? इतना गंदा लगेगा। अब जैसे डरना है तो मैं ट्रेन हूँ, मैं कर लेती हूँ ऐसे, ऐसे आप मुझे एनी टाइम बोल दो मैं डर जाऊँगी। बट अगर मैं डर रही हूँ तो आई एन्जॉय वर्किंग विद डायरेक्टर्स जो डर का मतलब ऐसे करते हैं कि रियल लाइफ में मैं नहीं करूँगी। अभी मेरे ऊपर छिपकली कूद गई थी, मुझे तो मैं ज़िंदगी भर सोचती थी कि मुझे सबसे ज़्यादा डर छिपकली से होता है कि जब छिपकली मेरे पे कूद जाएगी मैं शायद बेहोश होऊँगी। इतनी सी आवाज़ निकली थी। तो मैं ये कह रही हूँ जो था वो एक इंटरनल प्रोसेस होता है कि इफ मैं डर रही हूँ तो मैं पिलो यूँ करूँगी, मैं डर रही हूँ तो मैं पसीना पोंछूँगी, ये होगा। आई सो वी आर रियली ट्राइंग टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क, इसलिए मैं लिमिटेड काम करती हूँ। मेरे को नहीं होता है ऐसे वाला। सो दैट इज़ द थिंग। वाह, सो गुड। और भी किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। टाइम काफी हो गया है, 12:04 हो गया है, 12:05 हो गया है। एनीवन एल्स यू हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन विद सोनल? So
So Sonal, it was very beautiful, happy presentation of yours, and तुमने सारे nuances बताए acting के क्या पीछे होता है, behind the scene what happens, and everything that you have told me, वो सब कुछ होता है. So we really enjoyed talking to you and hearing about what happens behind the scenes and how you take up with different producers and how you take up with how to act. And you put your inputs also, and how you do your makeup, how you carry yourself, how you dress up, and how you say no to so many things that you don't want to do. So that is very important. Saying no to anything is very important. That matters a lot. So you are still there, strongly rooted in Bollywood. That is really amazing, and keeping yourself sane. That is more important. And everybody out here and around the world who are listening to this, they will also appreciate your strength and your power of positivity, which keeps you sane. So with that note, thank you very much, Sonal. Thank you everyone for being with us. Thank you for Maven team. Thank you, Shabana. And thank you everyone. Namaste. Thank you. Namaste.